Hello everyone, welcome on Grasping Python. In this video, we are going to discuss network security, where we are going to discuss authorization, authentication, encrypted smart card, biometric system and firewall. ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटीज़ के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे ऑथराइजेशन की, ऑथेंटिकेशन की, एनक्रिप्टेड स्मार्ट कार्ड की, बायोमेट्रिक सिस्टम की और फायरवॉल की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग बेसिकली क्या होता है कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है उसके यूजर्स को, ठीक है, अलोंग विद द कन्वीनियंस। But this convenience and endless benefits are not free from the risk, as there are many risks to network security. अगर हम बात करें तो while ensuring network security, the concern are to make sure that only legal or authorized user and program gain access to information resources like database. Also, certain control mechanisms are set up to ensure that properly authenticated users get access only to those resources that they are entitled to use. Under this type of security mechanism like authorization, authentication, encrypted, smart card and biometric or firewall are implemented. फिजिकल सिक्योरिटी हॉल्स की अगर हम बात करें, व्हेन इंडिविजुअल गेन अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस टू अ कंप्यूटर एंड टेम्पर विद फाइल, hackers do it by guessing password of various users then gaining access. Software security holes की अगर हम बात करें, when badly written programs or privileged software are compromised into doing things that they should not be doing. इनकंसिस्टेंट यूज होल्स की अगर हम बात करें, व्हेन ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर admissible in combination of hardware and software such that the system is seriously flawed from the security point of view. आगे अगर हम बात करें तो द काउंटर और रिड्यूस द सिक्योरिटी थ्रेट्स रिसीव्ड अंडर दिस कैटेगरी मैनी प्रोटेक्शन मेथड्स आर यूज्ड। फर्स्ट आपका आता है ऑथराइजेशन। Authorizations determine whether the services provider या service provider has granted access to the web service to the requester. Authorization is performed by asking user a legal login ID. If the user is able to provide a legal login ID, ही एंड सी कंसिडर है ऑथराइज यूजर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई वेब सर्विसेज को एक्सेस करना है, जो सर्विस प्रोवाइडर के पास आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपको एक लीगल लॉगिन आईडी प्रोवाइड करेगा। अगर आप वो लॉगिन आईडी यूज करके लॉगिन करते हैं तो इट मीन्स यू आर द ऑथराइज पर्सन। इट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन मीन्स इट इन्वॉल्व एक्सेप्टिंग कार्डिशियंस फ्रॉम द entity and validating them against an authority. Authentication is also termed as a password protection, as the authorized user is asked to provide a valid password, and if he is able to do this, he is considered to be the authenticate user. कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई पासवर्ड दिया और पासवर्ड को आप एंटर करते हैं, ठीक है, जो भी कार्डिनल्स देते हैं, पासवर्ड हो गया, यूजर नेम हो गया, वो डालने के बाद आपने पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद वो एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बेस पे आपको डिसाइड करेगा कि अगर आपने पासवर्ड सही डाला है तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, मतलब ऑथेंटिकेट यूजर है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनक्रिप्टेड स्मार्ट कार्ड। Password is a remote login session generally passed over the network in an unencrypted form, and any hackers or crackers can simply record it and can use it later maliciously for to corrupt data or file or to harm anyone. To counter such threats, newer approach are suggested such as encrypted smart card. An encrypted smart card is a handheld smart card that can be generated token that a computer system can be recognized every time a new and different token is generated, which even though cracked or hacked कैन नॉट बी यूज लेटर। कहने का मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के अंदर लॉगिन आईडी और पासवर्ड का पता चल जाता है, हैकर्स उसको हैक भी कर सकते हैं, बट इनक्रिप्टेड स्मार्ट कार्ड में क्या होगा, हर टाइम पे आपके लिए न्यू मतलब टोकन जनरेट होगा और जिसके थ्रू आपके पास रहेगा वो कार्ड, जिससे आप टच करके या जैसे कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे आप जो स्मार्ट कार्ड एंट्री होती है वहाँ पे टच करने के बाद आपका डोर खुल जाता है, तो वो आपका होता है एनक्रिप्टेड स्मार्ट कार्ड प्रोटेक्शन मेथड।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बायोमेट्रिक सिस्टम आता है। द बायोमेट्रिक सिस्टम फॉर्म द मोस्ट सिक्योर लेवल ऑफ ऑथराइजेशन। द बायोमेट्रिक सिस्टम इन्वॉल्व सम यूनिक एस्पेक्ट ऑफ पर्सन's बॉडी सच एज फिंगरप्रिंट, रेटिनल पैटर्न्स और एस्टेब्लिश हिज और हर आइडेंटिटी। आजकल आप लोग देखते होंगे मोबाइल फोन्स के अंदर भी फेस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, फिंगर का हो गया आपका, वो सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, बायोमेट्रिक के अंदर। अब मोबाइल के अंदर पैटर्न लॉक की अगर हम बात करें तो पैटर्न लॉक किस में आ जाएगा आपका, ऑथराइजेशन के ऑथेंटिकेशन के अंदर। क्योंकि उसके अंदर आपने क्या किया है, एक पैटर्न लॉक बना रखा है। अगर आपने बता दिया किसी को कि ये पैटर्न लॉक है तो वो क्या होगा, ऑथेंटिकेट यूजर हो जाएगा, उसमें लॉगिन कर जाएगा। बट वहीं पे अगर आपने अपना फेस रिकॉग्नाइज करने का डाल दिया, या अपनी फिंगर को, या आपके जो अंगूठा है उसको टच करने के लिए अगर आपने यूज़ कर रखा है, या आपने आई सेंस को ओपन यूज करके अगर वो कर रखा है बायोमेट्रिक सिस्टम, तो उस केस के अंदर वो थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर है। नेक्स्ट आता है आपका फायरवॉल। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार बना लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फायरवॉल इज a system designed to prevent unauthorized access to or from a private network is called firewall. Firewall can be implemented in both hardware और सॉफ्टवेयर और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कहने का मतलब है कि अनऑथराइज एक्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फायरवॉल यूज करते हैं, या हार्डवेयर में भी आता है, सॉफ्टवेयर में भी आता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन में भी आता है। फायरवॉल आर फ्रिक्वेंटली यूज टू प्रिवेंट अनऑथराइज इंटरनेट यूजर्स from accessing private network connected to the internet, especially intranet. All messages entering or leaving to the intranet pass through the firewall, which examine each message and block those that do not meet the specified security criteria। ये होता है आपका फायरवॉल का काम। इंट्रानेट का मतलब क्या होता है, आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है। सपोज कर लीजिए ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है और ये आपका क्या है, इंटरनेट है। अब इंटरनेट और इसके अंदर यहाँ पे कनेक्ट किया, तो इस नेटवर्क से जो भी पैकेट्स जाएंगे उनको फिल्टर करने का काम करेगा, और इधर से जो पैकेट्स आएंगे उनको फिल्टर करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फायरवॉल। आगे अगर हम बात करें तो फायरवॉल इज कंसिडर्ड टू अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन प्रोटेक्टिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन फॉर ग्रेटर सिक्योरिटी, डेटा कैन बी एनक्रिप्टेड। तो फायरवॉल आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, राइट। जो बॉर्डर पे अगर हम बात करें तो बीएसएफ जो होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हम यूज करते हैं। तो वैसे ही फायरवॉल नेटवर्किंग के अंदर आपका क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जो आपका क्या करेगा, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगा, राइट। देयर आर द सेवरल टाइप्स ऑफ फायरवॉल टेक्निक, जिसके अंदर पैकेट को फिल्टर करेगा, एप्लीकेशन गेटवे हो सकता है, प्रॉक्सी सर्वर हो सकता है, और सर्किट लेवल गेटवे हो सकता है आपके। इनको वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं। पैकेट फिल्टर के अंदर क्या करेगा, looks as such packets entering or leaving the network and accept or reject is based on the user defined rules. Packet filtering is fairly effective and transparent to user, but it is difficult to configure. In addition, it is susceptible to IP spooning. Application gateway applies security mechanism to specify applications such as FTP, telnet services, file transfer protocol जो होता है आपका। This is a very effective but can improve a performance degradation. Proxy server intercept all messages entering and leaving the network. The proxy server effectively hides the true network address. सर्किट लेवल गेटवे की अगर हम बात करें तो अप्लाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म व्हेन अ कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। Once the connection has been made, packets are flow between the host without further checking. तो ये आपका जो चार कंपोनेंट्स है, पैकेट फिल्टर है, एप्लीकेशन गेटवे हो गया, प्रॉक्सी सर्वर हो गया, और सर्किट लेवल गेटवे हो गया, ये आपका फायरवॉल के है, नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट है। तो ये था आपका नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट, जिसमें हमने ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक, स्मार्ट कार्ड एंड फायरवॉल के बारे में हमने डिस्कस किया। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये हमारा मोटो है। वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो 12th क्लास के सारा कंटेंट्स, सारे सिलेबस अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज सारे वीडियोज अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू 2021 के पेपर पैटर्न के बेस पे। अगर आप वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट्स करके आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।